ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਜਾਈ ਭੇ ਰਖੈ ਆਪ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ, ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ। ਪੌੜੀ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ, ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ। ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਧੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੈ ਰਜ਼ਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 24ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 24ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਨੌਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 3 ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਇਹ 3 ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਇਹ ਦੇਵਤੇ 3 ਜ਼ਰੂਰ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭੰਡਾਰੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਚਹਿਰੀ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਝੁਕਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕੋ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ,
जुग जुग एको वेस। इसे गल नूं अज गुरु अंगद देव महाराज जी कह रहे, कहणगे सारे पासे वो परिपूर्ण परमात्मा ही है। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, महला दूजा, ये 24 पौड़ी का दूसरा श्लोक है। गुरु अंगद देव महाराज जी की मुखार बिंद रसना तो उचारण किया होया। सतगुरु कहणगे आपे साजे करे आप, जाई पे रखै आप। साजे का अर्थ हुंदा उन्होंने साजना, उन्होंने बनाउणा। कहते जे जीवत की घारत घड़ी जाती है ना, उन्होंने एक इयों कह लीए कि छोटे जे सैल तो लैके पूर्ण मनुख की घारत जिहड़ी है, घारत घड़न तक कहते जो भी उहदा समा लगता है या जिन्नी भी घारत है, वो केवल तो केवल परमात्मा करता पिया है। जीव जिहड़ा है उन्होंने परमात्मा पैदा करता पिया। आपे साजे करे आप, कहते परमात्मा तो बिना होर कोई नहीं जिहड़ा ये कारण जिहड़ा कर सकता है। परमात्मा आप ही साज के, करे का अर्थ कर देंगे पैदा करना। जाई पे रखै आप, रखै का अर्थ करांगे इत्थे कुछ विद्वानां ने कीता जी राखी, उन्हां दी सांभ संभाल। कहते फिर जीव नूं पैदा करके परमात्मा सांभ संभाल भी इउं आप ही करता है। ये अर्थ थोड़े जे होर सौखे कर दईए। आपे साजे, मात गर्भ दे विच परमात्मा आप ही जीव की साजना करता है। साजना उत्थे हुंदी है ना, इहदी जिहड़ी है घारत उत्थे घड़ी जाती है। करे आप, तो घारत घड़न तो बाद परमात्मा आप ही जीव का जन्म दवाउंदा, आप ही उन्होंने पैदा करता है। याद रखियो, साजना होर चीज़ है, पैदा होना होर चीज़ है। साजना का वो इयों कह सकते हैं कि जो वह शरीर जिहड़ा बनना शुरू होंदा है, उस तो लैके तो पूर्ण तौर पर बनन तक उन्होंने साजना कह दईए। आपे साजे कहते मात गर्भ दे विच परमात्मा आप ही जीव नूं साजदा, करे आप ही उन्होंने पैदा करता है। तो मैं परसों भी शायद ये गल कही सी कि एक गल याद रखियो, मनुख के हथ जन्म ते मौत नहीं आ सकती। कई केस इहो जिहे हुंदे ने गुरमुखो, जन्म देंदियां देंदियां ही बच्चे का जिहड़ा वो कई बारी मौत हो जाती, नुकसान हो जाता है। ये परमात्मा के हथ दे विच है। उन्हें किवें जिहड़ा इस गर्भ कुंड दे विच उन्होंने जीव नूं रखिया, किवें उन्होंने बाहर दुनिया ते लैके आउणा है, इहदे मगर केवल ते केवल परमात्मा की सत्ता, उहदी ताकत काम करदी है। आपे साजे करे आप, जाई पे रखै आप। कहते परमात्मा ने कला ये नहीं कि उन्होंने पैदा करके छड्ड दिता। जे जीव नूं परमात्मा ने पैदा किया तो सतगुरु कहते उहदी रखवाली जां इयों कह दी उन्होंने पालना पोषना भी, उहदी सांभ संभाल भी परमात्मा करता है। मैं परसों भी कहा सी गुरमुखो, जीवन दे विच ये कदी ना सोचीए कि साडा दाता कौन है, असीं किद्दां पलांगे। चलो ये पौड़ी दे विच भी शब्द आउणा है। याद रखियो, पालन वाला परमात्मा है। जिन्हें जन्म दिता है ना, उन्हें तुहानूं पाल भी लेना है, जिहो जे मर्जी हालात होण। सतगुरु कहते उन्होंने पैदा करने वाला, उन्होंने साजन वाला, उन्होंने पालन वाला परमात्मा है। आपे साजे करे आप, जाई पे रखै आप। अगे कह लगे तिस विच जंत उपायक है। इत्थे तिस विच दा अर्थ करांगे सृष्टि। कहते परमात्मा ने सृष्टि दे विच एक नहीं अनेका तरह के जीव जंतु पैदा किए ने। उपाय का अर्थ है पैदा करना। तिस विच जंत उपायक है, देखै, देखे का अर्थ करांगे सांभना। जे उन्होंने पैदा करके छड्ड नहीं दिता, कहते उन्होंने देखदा पिया है। थाप उथाप, थाप का अर्थ होंदा जी स्थापन करना, किसी थां ते टिका देना। जिवें मंदिर दे विच एक मूर्ति जो दुकान तो खरीद के लिया के रखी जाती है ना, उस रखन की प्रक्रिया नूं जिहड़ा स्थापन कहंदे ने। दुकान ते पई है वो मूर्ति है, मान लो वो किसी भी रब की किसी भी अवतार की है, वो मूर्ति है। उन्होंने जदों लिया के कुछ मंत्रां दे नाल, कुछ खास विधि के नाल जो उस तो टिका दिता जाता, उन्होंने कहा जाता जी इसका स्थापन कर दिता। सतगुरु कह लगे जेड़े जीव थापे जाते हैं वो भी परमात्मा थापदा। वो थाप का अर्थ करांगे उखेड़ना, भाव नाश करना। जीव नूं पैदा करने वाला, साजन वाला ते खत्म करने वाला भी केवल ते केवल आप परिपूर्ण परमात्मा है। कह लगे तिस विच जंत उपायक है, देखै थाप उथाप। अगे गुरु अंगद देव महाराज जी कह लगे किस नूं कहीए, नानका सब कुछ आपे आप। कहते जे सारा कुछ ही आपे आप है परमात्मा, तो फिर किहदे अगे फरियाद करिए, किहदे अगे झोली अड्डीए कि असी चंगे हाँ जां माड़े हाँ। मैं बस इसे पंक्ति ते रुकना चाहुंदा। एक दो बेनतियां करां कि किस नूं कहीए नानका। पहली गल, सतगुरु कह लगे सारा कुछ करन कराउण वाला परमात्मा है।
तो मन च आवेगा कई बारी जे सारा कुछ परमात्मा ने करना है तो फिर असी अरदासां बेनतियां काहदे लई करदे हां? कि ये अरदासां पहुँचदियां ने, इन्हां दा कोई फायदा है जां केवल तो केवल फॉर्मैलिटी है? पहली मैं बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती है केवल तो केवल एक वो परमात्मा ही है जिहड़ा सारी सृष्टि नूं चलाउंदा पिया है। असी अनेका सतगुरां दे बचन पढ़ते हैं कि तिस बिन दूजा ना ही कोई, तू करतार करें सो होए तेरा जोर, तेरी मन टेक सदा सदा जप नानक एक। उहिओ परमात्मा है जिहड़ा सारा कुछ करदा पिया, तू उहनूं ही जपना कर। पर इत्थे खास करके किस नूं कहीए? नानका मैं अपने अंदर की वेदना किनू कहां? जदों गल आउंदी है किस नूं कहीए, उत्थे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी जिहड़ी है दो हस्तियां का जिक्र करती है। एक सतगुरां की बाणी कहती है तू गुरु के चरणों च अरदास कर, एक सतगुरां की बाणी कहती है तू परमात्मा के चरणों च अरदास कर। परमात्मा गुरु जिहड़ा है इन्हां च कोई फर्क नहीं है, गुर परमेश्वर एक हो जान। असी ये भी बचन पढ़ते हैं कि जी की बिरथा होए सो गुर पह अरदास कर। किस नूं कही है? नानका तेरे अंदर की वेदना है, तेरे ते चंगा समा है, तेरे ते माड़ा समा है, तू चंगे हालात च है माड़े हालात च है। गुरु अंगद देव महाराज जी कहते हैं किस नूं कही है, मैं किनू वेदना दसा? गुरु ग्रंथ साहब बोल के कहते हैं तू गुरु नूं दस। पहली बेनती कि जी की बिरथा होए सो गुर पह अरदास कर। एक तू काम करी, तू गुरु के चरणों दे विच अरदास करी। जो गुरु के चरणों च अरदास की जाती है तो नाल गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी कहती तू परमात्मा का सिमरन करी, परमात्मा के चरणों च फरियाद करी। कीती होई गुरु ते परमात्मा के चरणों के विच तेरी अरदास जिहड़ी है वो कदी भी व्यर्थ नहीं जाती। इत्थे मैं एक दो उदाहरणा देना कि असी किदों किदों परमात्मा के अगे फरियाद कर सकते हैं। पहली एक गल इत्थे समझ लियो कि कई बारी ना अरदास का नमूना कुछ होर हुंदा है ते अंदर की वेदना कुछ होर हुंदी है। मनुख की करता है, ज़्यादातर वेखो वेखी चलता है, उन्हें भी अरदास की है मैं भी कर देना, वह भी करता है मैं भी कर देना है। जदों मनुख का अंदर परमात्मा के नाल जुड़ जाता है ना तो वही कीती हुई हरेक अरदास जिहड़ी रब दे परमात्मा के दर ते प्रवान हो जाती है। वो असी गुरु अर्जुन साहब का बचन भी पढ़ते हैं कि नानक दास मुख ते जो बोलै इहां उहां सच होवे, वो सारा कुछ प्रवान है। अगली बेनती मैं एक दो उदाहरण गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विचों देनियां चाहुंदा। जदों भगतां ते मुसीबत आई ना, भगतां ने रब नूं पुकारिया। जदों तुसीं समाज च विचरोगे दो तरीकों का जां दो मुश्किलों का तुहानूं सामना करना पवेगा। सब तो पहला तुहानूं संसार दीयां लोड़ां दा सामना करना पैंदा है। जदों संसार दीयां लोड़ां पूरीआं होंदियां ने, अंदर वल नूं चलदे जे फिर तुहानूं विकारां दा सामना करना पैंदा है। जिहड़ा भगती का मार्ग है ना, ये इस तरीके दे नाल चलदा है। समाजिक तौर पर असीं जदों जिंदगी जीवांगे केवल तो केवल संसारिक लोड़ां ने, वो नहीं कदी मुकदियां। पर रूहानीयत के मार्ग के संसारिक लोड़ां जदों मुक जांदियां ने, जदों वो मसला हल हो जाता है, उस तो बाद जिहड़ी लोड़ है वो आत्मा की है। तो आत्मा जिस वेले परमात्मा घर का सफ़र तय करती है, सच्ची गल यह है कि उदों ये जिहड़े पंज विकार ने इनू किसी पासे नहीं लगन देंदे। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने दोवां थावां ते फरियाद की, तो ये दोवें पक्ष मैं एक एक उदाहरण दे के तुहाडे सामने कर देना। एक आरती दे विच रोज़ शब्द पढ़िया जाता है, भगत कबीर साहब दा कहण लगे भूखे भगत ना कीजै। जिस वेले भगत दे तन दे उत्ते जिहड़ा सी संसारिक लोड़ां ने आण के धावा बोलिया तो उन्हें रब दे अगे अपनी फरियाद रख दी। किस नूं कही है? नानका याद रखी तू परमात्मा दे अगे गुरु अगे फरियाद कर, रब ते सिवाए किसी होर अगे हथ ना अड्डी। बस इहो दुनियावी लोक ते भगतां 'च फर्क है। दुनियावी लोक मनुख तो मंगदा है ते जिहड़ा भगत है वो केवल ते केवल रब तो मंगदा पिया है। उत्थे भगत कबीर साहब कह लगे भूखे भगत ना कीजै, जह माला अपनी लीजै। कहते परमात्मा जे बंदगी कराउणी है ना तो पहला पेट की भुख दूर कर, भुखिया बंदगी नहीं हुंदी। जे मैं बंदगी ते बैठांगा भुख सताएगी, ध्यान तो भुख दे विच आ गया, तेरे नाल किहड़े वेले जुड़ांगा। भूखे भगत ना कीजै जह माला अपनी लीजै, हाँ मांगो संतन रेना मैं नाही किसी का देना। मैं तेरे कोलों रब दे प्यारिਆਂ दी चरण धूड़ी मंगदा। एक गल याद रखी, ਜਾਂ तेरे कोलों कुछ मंगांगा ਜਾਂ तेरे प्यारिਆਂ ਦੇ कोलों कुछ मंगांगा, मैं किसी होर दी मुताजगी नहीं कर सकता। मैं ना ही किसी का देना, देना का अर्थ करांगे मुताजगी, मैं किसी की कोई मुताजगी नहीं। कह लगे भूखे भगत ना कीजै जह माला अपनी लीजै, हाँ मांगो संतन रेना
मैं ना ही किसी का देना, माधो कैसे बने तुम संगे, आप ना देवो तां लियो मंगे। कहते जे तू ना मैनू देगा तो मैं तेरा भगत हाँ, तेरी बंदगी करदा, मैं तेरे कोलों आप खुद मंग के लै लांगा। वो मंगना की है, वो लोड़ की है। कह लगे दो सिर मांगो चूना, चूना कहते हैं आटे नूं, दो सिर कहते मैनू आटा दे दिओ, पाओ घिओ संग लूना, पाक घिओ दे दिओ तो थोड़ा जिहा लून दे दिओ, अध सिर मांगो दाले, अद्धी सेर जिहड़ी दाल दे दिओ, कादे वास्ते मौका दोनों वक्त जी वाले, ये दो टाइम की मेरी रोटी इन्ने क अनाज दे नाल सौखी पक जाएगी। साडे वांगू सालां की मेहनत नहीं मंगी, सालां का राशन नहीं मंगिया, एफडियां नहीं मंगियां, कहते केवल तो केवल इन्ना क दे दे कि दो टाइम की रोटी पक जाए, अगला दिन आएगा, अगले दिन फिर वेख लांगे। कह अगे बचने कह लगे खाट मांगो चौपाई, सिरहाना अवर तलाई। कह चौपाई कहते ने मंजी नूं, कहते एक चंगी वधिया जिहड़ी है सौण वास्ते चार पाई एक मंजी दे दे, मंजी दे उत्ते निरा नहीं सुता जाना, एक सराहना दे दी सिर थले लैन वास्ते ते विछाउण वास्ते तलाई दे दी। खाट मांगो चौपाई, सिरहाना अवर तलाई, ऊपर को मांगो खींदा खेस, कह लगे उत्ते लैन वास्ते खेस दे दे। हुण कई वारी आवेगा मन च कि भगत ते मंगदा दुनियावी चीज़ां पईआं ने, साडे वर्गा सारा कुछ रब को मंग के, रोटी भी मंग ली, दाल भी मंग ली, घिओ भी मंग लिया, मंजी भी मंग ली, बिस्तरा मंग लिया, लैके खेस उत्ते सौ जे। पर भगत इदां नहीं कहते, कहते एक खाट मांगो चौपाई, सिरहाना अवर तलाई, ऊपर को मांगो खींदा, कादे वास्ते तेरी भगत करै जन थींदा, तां जो मैं तेरी बंदगी कर सकां, इस वास्ते मैनू आ लोड़ींदियां चीज़ां दे दे। कह लगा मैं ना ही कीता लभो, मैं कोई लब नहीं कीता, मैं साल का राशन नहीं मंगया तेरे को, केवल तो केवल दो वक्त की रोटी मंगी है। जे प्यार पुछदा है एक नाम तेरा मैं फब्बो, मैनू तेरा परमात्मा जियो नाम ही चंगा लगता है। हाँ मैं ना ही कीता लभो, एक नाम तेरा मैं फब्बो, कह कबीर मन मान्या तो हर जानिया। कहते जिस वेले मेरा मन तेरे दे विच अभेद हो गया, याद रखी उदों मैं तेरे विच एकमिक हो जावांगा। ये संसारिक लोड़ां ने, ये वो रब दे प्यारिਆਂ ने डिमांड की है, पर परमात्मा दे अगे केवल तो केवल दो वक्त की रोटी दी की। जो भगत कबीर साहब का जीवन पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के विच बचन ने, कह लगे एक दोए मंदिर एक दोए बाट, हमको सातर उनको खाट, मूंड पलोस करमबद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी। ये मैं अर्थ कर देना, भगत कबीर साहब के हालात की ने। मंदिर कहते हैं घर नूं, कहते भगत कबीर साहब साधु संतां नूं लैके आउंदे ने, एक अद्धा साधु संत घर च बैठा हुंदा है, वो जो उठ के जान लगदा असीं शुक्र करते हैं कि साधु संत जाएगा, सारा टब्बर आराम नाल बैठांगे, मंजी एक ही है, खाण पीण नूं कुछ बहुता नहीं, एक दोए मंदिर एक अद्धा घर दे विच हुंदा है, उन्हां नूं छड्ड के आउंदे ने, एक दोए बाट, एक अद्धा रस्ते च उतरिया फिर फड़ के लई आउंदे ने, एक दोए मंदिर एक दोए बाट, हमको साथर, साथर कहंदे ने जमीनों, परिवार कह रहा सानू सौण वास्ते भुंजे जमीन मिलती है, उनको खाट, खाट का अर्थ किया है मंजी, उन्होंने सौण वास्ते मंदी दी जाती है, मूंड पलोस करमबद पोथी, कहते वो बेचारे सिर ते हथ मारते हुए हाँ कच्छां दे विच जिहड़ियां वो पोथियां लैके आई जाते हैं, हमको चाबन उनको रोटी। इन्ने क भगत के घर के हालात नाजुक ने, घर वालियां नूं कई वार जिहड़ा वो भुजे, चाबन का अर्थ भुजे छोले खा के गुजारा करना पैंदा, जिहड़ी एक अद्धी रोटी पकदी वो साधु संतां नूं खवा के सेवा कर दी जाती। आ हालात दे भगत ने, इन्हां हालातां चों गुजरदे होए भगत ने आ जिहड़ी चीज़ है वो परमात्मा दे कोलों मंगी है। जिस वेले परमात्मा दे कोलों असीं कुछ भी मंगदे हैं ना, मैं एक प्रमाण कह के दूसरी उदाहरण वाल आवां। अमृत बाणी कहती है मान मांगो तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत देह, देह का अर्थ है देह रोगता। हे प्रभु मैं सारियां दातां तेरे दर तो मंगणियां ने, मैनूं इज्जत भी चाहिए है, धन दौलत परिवार भी चाहिए है, दे अरोगता मान प्रतिष्ठा भी चाहिए है, सारा कुछ तेरे दर तो मंगना है। इस मेरी गल का अर्थ अज ये ना कर लियो कि पता नहीं असीं कित्थों मंगना, मंगना सारिਆਂ को ने गुरु दे कोलों है। पर गुरु अंगद देव महाराज जी कह रहे हैं किस नूं कहीए नानका मैं किहदे अगे फरियाद करा, सारा कुछ तो परमात्मा ही कर रहा है। हुण इहदी घुंडी पई है गुरु अंगद देव महाराज जी ने एक, तो उन्होंने मैं जिहड़ा बाणी दे विच थोड़ा जिहा स्पष्ट कर देवां कहना किनू है। अगली बेनती करा, जो तुसीं सिमरन करदे जिन्हां संसारिक लोड़ां पूरीआं हुंदियां ने ना, संसारिक लोड़ां तो बाद मनुख नूं विकार तंग करदे। सच्ची गल है, जिउं जिउं तुसीं बाणी पढ़ोगे ना, कदी काम आउंदा है, कदी क्रोध, कदी लोभ, कदी मोह, कदी हंकार आ जांदा है। ते हंकार इन्ना क भैड़ा है, ये वड्डे वड्डे देवतिਆਂ ਨੂੰ नहीं छड्डिया, इन्हें उन्होंने भी फड़ के ढा के रख दिता। जिस वेले इन्हां विकारां ने आण के देवतिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ बंदगी करन वालिਆਂ ਨੂੰ ढाया, उस वेले फिर भगत रब दे नाल लड़ के कहंदा कि तूं इहदे तो हुण मैनूं बचाउणा, ये तेरी जिम्मेवारी है।
ਉਹ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਇੱਕ ਭਇਆ ਪੇਖ ਧਾਰੀ ਕਾਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਇੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਕਾਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਕਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਤਵ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਾ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਰਵੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ। ਉਧਰ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ਤਵ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਾਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਿਆ, ਕਿਸਮਤ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗਰਾਸੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੇਰ, ਜੰਬੁਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗਿੱਦੜ ਹੀ ਡਰਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤਰਿਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਚਾਤਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਪੀਏ ਨੂੰ। ਪਪੀਏ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ, ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ ਪਪੀਆ ਵਿਚਾਰਾ ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਸੇ ਦੇ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੰਦ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦ ਚਲੀ ਗਈ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਗਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫੁਨ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤਰਿਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ ਫੁਨ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਪੀਆ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਤੜਫਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਸਿੱਧਾ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇਉਂ ਜਾਪੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਥਾਕੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਬਰਮਾਵੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ, 10 ਬਰਮਾਓਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਹੌਸਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਥਾਕੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਥਾਕੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਬਰਮਾਵੋਂ, ਦੱਸ ਕਾਹਦਾ ਧੀਰਜ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੂਢ ਮੂਏ ਨੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਬੂਢ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡੁੱਬਣਾ, ਨੌਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਕਹੋ ਕਾਹੇ ਚੜਾਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕਛ ਹਉ ਨਾਹੀਂ ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕਿਛ ਹਉ ਨਾਹੀਂ ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦੀ ਤੂੰ ਲਾਜ ਰੱਖ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਫੜੀ, ਸਟੈਂਪ ਮੋਹਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇਹ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
सतगुरु कहते फिर पढ़ना होवे ते कहन लगा जी इनू शाही ला के किसी कागज़ ते ला दो, पता लग जाएगा मोहर के उत्ते की लिखिया है। सतगुरां ने शाही मंगाई, वो शाही ला के ते जिहड़ी मोहर सी वो कागज़ ते ला दी। जिस वेले कागज़ ते ला दी वो पढ़िया गया। सतगुरु कह लगे भलिया आ गुरु कोल आउण दा फायदा है। कह लगे सतगुरु समझिया नहीं, कह लगे मोहर जे अपने कर्म वेखे तो वो लेख पुठे ने, जे मोहर दे नाल शाही लग के कागज़ ते लिखिया जाए मोहर दे अखर पुठे सीधे हो जाते हैं। जिहड़ा मनुख गुरु के चरणों च आण के टिक जाता वो पुठे कर्म भी सीधे हो जाते हैं। इत्थे सतगुरु जी कह रहे हैं किस नूं कहीए, नानका सब कुछ आपे आप, सारा कुछ परिपूर्ण परमात्मा आप है, किहदे अगे फरियाद करा। अगे धन गुरु नानक साहब महाराज जी पौड़ी दे विच बख्शिश करते हैं, कहते जे फरियाद करनी है ओदियां वडियाइयां कर। पौड़ी कह लगे वड्डे कीआं वडियाइयां, वड्डे दे अर्थ करांगे परमात्मा, कहते अकाल पुरख वाहिगुरू दियां वडियाइयां। इत्थे वडियाई दा अर्थ कर लांगे ओदी उस्तत, ओदी महिमा। किश कहना कहन ना जाए, कहते कोई मनुख जिन्नियां मर्जी ओदियां वडियाइयां बयान करन दा यतन करे, पूर्ण तौर ते मनुख परमात्मा दियां वडियाइयां बयान नहीं जे कर सकदा। पर इहदा भाव ये नहीं असीं ओदी वडियाई नहीं करनी। याद रखियो जे वडियाई करनी है तो करनी कदों है। सब तो वड्डा सवाल ये है, गुरु नानक साहब नूं पुछो, गुरु नानक साहब कहते अमृत वेला सच नाओ वडियाई 20 इर्च दोवें जवाब मिल गए। अमृत वेले उठ के ते ओदे नाम की वडियाई करी, भाव ओदा नाम जपना एक ओदी वडियाई है। अगली बेनती करा, जो परमात्मा ने दिता है ना ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੈ ਕਿਸੇ ਤਾਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹੀ परमात्मा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀ ਜਾ। परमात्मा ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੈ ਕਿਸੇ ਤਾਨ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀ ਸਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰ ਲਈਏ कि ये वडियाइयां ने, तू इन्हां नूं वेख के गाई जा। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खे, गावे को जी लै फिर देह, गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लैंदे, थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाए, तू जुगा जुगंतर खाई जाना है, ये भी ओदी वडियाई करी जा। पातशाह तेरा शुक्र है, तू मैनू दातां जाई जाना, ये भी ओदी वडियाई जे। गुरमुखो उन्हें तुहानू घर दिता, ओदा शुक्र करो, ये वडियाई है। उन्हें परिवार दिता, शुक्र करो, ओदी वडियाई है। ओदा नाम जपो, वडियाई है। बाणी पढ़ो, ओदी वडियाई है। जिहड़ी भी चीज़ तुसीं परमात्मा दे नाल जोड़ दिओ, मैं सौखा कर दें, ओही ओदी वडियाई है। पर इत्थे गुरु नानक साहब कह रहे हैं, तू ओदा अंत नहीं पा सकदा। वडियाइयां तू कर सकदा है पर ओदा अंत नहीं। एक बूंद सागर च समा ते सकदी है पर सागर दा अंत नहीं पाया जाना। असी परमात्मा दीयां वडियाइयां ते कर सकदे हैं पर परमात्मा दा अंत नहीं। वड्डे कीआं वडियाइयां किश कहना कहन ना जाए, परमात्मा दीयां वडियाइयां नूं कोई पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदा। सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाहे। करता दा अर्थ है जी बनाउण वाला, कादर का अर्थ करांगे कुदरत का मालक खसम, करीम ये फारसी का शब्द है, यदा अर्थ करांगे बख्शिश करने वाला। कह लगे हे प्रभु जी तू सब तो पहला करता है। करता का अर्थ है पैदा करने वाला, बनाउण वाला। जे तू करता है तो नाल ही तू कुदरत का मालक है। कई बारी इदा होंदा है कि मनुख किसी चीज़ का करता होंदा है, जिहड़ी चीज़ जिथे पई हुंदी उहदा मालक कोई होर हुंदा है। मान लो तुसीं पेंटिंग बनाई, एक पेंटर पेंटिंग का करता है पर जिस घर दे विच लगी वो उहदा मालक नहीं है। मेरी बेनती नूं समझो, तुसीं एक पेंटिंग लिया के चाहुंदे जे मैं इस थां ते टंग देवां, अगला आखेगा पेंटिंग तू बनाई है, तू पेंटिंग का मालक है, पर घर का मैं मालक है, मेरी मर्जी तो बिना तू नहीं टंग सकदा। पर कुदरत इदां नहीं, कुदरत का करता भी परमात्मा जे ते इहदा कादर उहदा मालक भी परमात्मा जी। अगे शब्द है करीम ते बख्शिशां भी परमात्मा करदा है। परमात्मा चाहुंदा है जिन्हों जिथे रखना उन्होंने उत्थे फड़ के फिट कर दिंदा। परमात्मा नूं किसी नूं पुछण दी लोड़ नहीं। इनू अमृत बाणी दे विच इउं भी आपां पढ़दे हां कि हम भीखक भेखारी तेरे, तू निजपत है दाता। निजपत दा अर्थ है अपनी मर्जी का मालक, अपना आप मालक है। तू कदी किसी दे कोलों सलाह नहीं लैंदा। बीओ पूछना मसलत धरै, जो किश करै सो आपे करे। तू किसी दे नाल सलाह नहीं, कोई मशवरा नहीं, किसी की कोई गल नहीं मनदा। हर थां ते तू अपनी खुशी दे नाल अपना कर्म पिया करदा है। सतगुरु कह लगे सो करता
कादर करीम दे जियां रिजक संभाहे, जिहड़ी गल आप आरंभ च कर रहे सा, कहते वो परमात्मा सारिਆਂ ਨੂੰ रिजक दे रहा है। तो मैं आरंभ च भी कहा सी गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है तू रिजक का फिक्र ना कर। मैं दो प्रमाण दे देना। एक तो असी बचन अमृत बाणी के विच रोज़ पढ़ते हैं। सतगुरु कह लगे काहे रे मन चित्त वह उद्यम। उद्यम का अर्थ है काहदे वध तो वध अपने मन के घोड़े दौड़ाई जाना है। काहे रे मन चित्त वह उद्यम जा आहर हर जीओ भरिया। आहर का अर्थ है वो काम जिहदे मगर तू भज्या फिरदा है। हुण साडी सोच पता की है, मैं बड़ी बारी कहना है हर एक मनुख अपनी सोच दे मगर मैं पता नहीं की करांगा, भविख च की करांगा, मेरे नाल इदां हो जाए इदां। असीं भज्जे फिरदे दौड़दे फिरदे पर कुछ नहीं मिलता। नौजवान नौकरियां पिछे भज्जे फिरदे ने, परिवार जिहड़ा है वो रोटी दे मगर भजदा फिरदा है। पर बाणी कहती है परमात्मा ने हरेक चीज़ का समा फिट किया होया है। जदों जिहड़ा काम होना है ना वो उस वेले होना है। तुसीं भज लो थक थुक के बैठ जाओगे, ना भजो तां भी आण के उस जिहड़ा जिथे समा आउंदा ना वो उत्थे आण के जिहड़ा काम बनना वो उदों ही बनना है। ये तो गल पक्की, ये अपने मन च धार के रखो। हाँ तुसीं भजना नठना तुहाडी खुशी है। सतगुरु कह लगे जिहड़े काम वास्ते परमात्मा आप जुटिया होया है ना, तू उहदे वास्ते कद लई भज्जा फिरदा है। काहे रे मन चितवै उद्यम जा आहर हर जीओ भरिया। उदाहरण दी कह लगे सैल पत्थर मह जंत उपाए ताका रिजक आग्या कर धरिया। परमात्मा ने तो कीड़ियां नूं जिहड़ा है पत्थरां दे विच जन्म दे के उत्थे उन्हां दा रिजक का प्रबंध कीता ते तैनूं रिजक ना देवेगा। एक उदाहरण दे के अगले पासे आवां। याद रखियो असीं रोटी का इंतजाम करते हैं। आ कणक आपां हुण पिछे जी आई तो सारे ने भड़ोले भर ले होने ने। चलो शहरीए नहीं भरते, तुसीं 8-10 किलो की गुत्थी लै आउंदे जे, पैसे तो बैंक च हैगे ने ना। पर पंछियां दे कोलों की पिया हुंदा है, वो रात नूं खा के आउंदे ने, आराम दे नाल सौंदे ने, दिन चढ़दा फिर उडारी मार जांदे ने। उन्हां दा ये मनना है जे रब ने अखां खोलेगा रिजक भी मिल जाएगा। गुरु अमरदास महाराज जी ने गोइंदवाल साहब का इतिहास है। सतगुरु एक दिन दे विच जिन्नी क सेवा आउंदी सी लगदी सी उन्नी प्रवान करदे सन। जिहड़ा राशन पानी वध जांदा सी ना पक्का वो ब्यास ते रोड़ दिता जांदा सी मच्छियां दे वास्ते। सतगुरु कहंदे सन जे सवेर दा दिन चढ़ेगा तो सवेर वास्ते रिजक भी आ जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी कहती है, कह लगे तू कादे वास्ते भजदा फिरदा है, वो परमात्मा तेरी सांभ संभाल करदा फिरदा है। जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है तू काहे डोलै प्राणियां तुद राखेगा सिरजनहार। कादे वास्ते घबराउना है। सतगुरु कह लगे सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाहे। संभाहे का अर्थ बड़ा सोहना जी, इकट्ठा करना। कहते तू ना इकट्ठा कर, परमात्मा खुद इकट्ठा करता पिया है तेरे वास्ते। कई बारी तुसीं वेखो ये मनुख शाम तक कोई जुगाड़ लाउण नूं फिरदा हुंदा, मैं भी आह काम करना है, तो रस्ते दे विच दिने कई वारी पता नहीं किहड़ी चीज़ का किहड़ा मसला हल हो जाता, सानूं पता ही नहीं लगता आह काम इदां बनना सी। असीं कुछ मटीरियल इकट्ठा करते फिरदे आ, परमात्मा ने पहलां कोई वखरा इंतजाम करके बैठा है। वो परमात्मा इकट्ठा करता पिया, तू लूण तेल की फिक्र ना कर, उन्हें सारा इंतजाम किया है। सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाहे। अगे कह लगे साईकार कमावनी। पर मुश्किल पता की है, सतगुरु कहते जीव उहिओ कार करदा है तुर छोडी तिन्नै पाए जो धुर तो परमात्मा ने ये भागां दे विच लिखी है। ये एक खेड है ना, जिवें पिछले दिनों च किहा खेड दे रूल बड़े बड़े पुट्ठे हुंदे ने, बड़े तरह दीयां खेडां हुंदियां। निक्के हुंदे आपां खेडदे रहे बांदर किला हो गया, इहो जिहियां बड़ियां पुट्ठियां पुट्ठियां लक सेकना, एक दूजे नूं मारदा। ये खेड ही है, ये परमात्मा की खेड है। कोई बेचारा रोटी दे मगर लगा फिरदा है, कोई बेचारा जिहड़ा है ये किसी चीज़ दे मगर भजदा फिरदा, सारी दिहाड़ी कल्पदा रहिंदा कल्पदा रहिंदा है। ये परमात्मा की खेड है। सतगुरु कहते ये खेड वाल जिहड़ा भजाउणा भजूणा जो भी है ना, ये परमात्मा ने तेरे कर्मां च लिखिया होया है। वैसे साईकार कमावनी, तू उहिओ कर्म करदा है जिहड़ा परमात्मा तेरे कोलों कराउंदा पिया है। धुर छोडी तिन्नै पाए, वो परमात्मा ने तेरे कर्मां दे विच जो कुछ लिखिया तू उहिओ ही करदा है। अगे कह लगे नानक एक ही बाहर ही, कहते एक परमात्मा तो बाहर होर दूजी ना ही जाए। जाए का अर्थ है थां, कहते परमात्मा तो बिना कोई होर थां नहीं जिहदे अगे तू फरियाद करें। केवल तो केवल परमात्मा है जी, हर थां दे उत्ते परमात्मा मौजूद है। तो मैं एक गल कह के विचों निकला, कई बारी साडे मन च आवेगा, मैं दो गल्लां करतियां इत्थे भी जो परमात्मा करदा उहिओ कुछ होना है, तो दूजे पासे आपां कह दिता कि मनुख जिहड़ा है वो गुरु दे चरनां च आवे। ये कई बारी ने ये आपा विरोधी गल्लां लगदियां ने। पर ये एक जिवें जलेबी नूं वालजे नहीं हुंदे, ये परमात्मा ने इदां दे वालजे मारे ने, वो सारा कुछ आप ही घुमा घमू के सारा सर्कल आप ही फिट करके बैठा है। साडी रसना तो वो आप ही घुआ रहा है, आप ही साडे मन दे विच कोई ना कोई ख्याल पाउंदा, आप ही मनुख उहदे पासे नूं लग जांदा है। हाँ तुसीं एक काम करो, जिहड़ा भी तुहाडे कोल समां निकलदा बस उहदा शुकर करिया करो। चंगा समा है माड़ा समा इक्को गल आख्या करो, जो तुद भावै
ਸਾਈ ਭਲੇ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭੁਲੇਖਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲੇ, ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਲਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਏ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੀ, ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜ਼ਾਏ, ਰਜ਼ਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਰਜਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜ਼ਾਏ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 5-7 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 95 ਕੁ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਲੋ YouTube ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। 24 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 60 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, 15 ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। 60 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 60 ਸ਼ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, 84 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 84 ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਆਸਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਹਰੇਕ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 24ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜ਼ਾਈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੁਧ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ 15 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧ ਕੀਚੀ ਆਇਆ ਇਹ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ, ਅੱਗੇ 24 ਗਿਣਤੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸੁਧ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਬਹੁਤਾਂਤ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸੀ। 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੁਧ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪਾਉਣ ਜੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਧ ਕੀਚੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਸੰਗਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੈ ਰਜ਼ਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।